Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Amir, Assistant Professor Medicine, Medical Unit 3. So, the topic for today's lecture is Addison's disease. This is a rare disease we are going to discuss today. There are two different varieties of hypoadrenalism. As the name indicates, the decreased activity of adrenal gland. The common one is primary hypoadrenalism, in which the gland itself is defective. If we discuss the pathophysiology and the different causes of this gland, there is destruction of the entire adrenal cortex. The main defect is in adrenal cortex. So, the glucocorticoids, the mineralocorticoids and sex steroid production, all the three main hormones, that is glucocorticoids, mineralocorticoids and sex steroid production, they are all reduced or not produced. Now, this phenomena differs from secondary hypoadrenalism, that is hypothalamic pituitary disease, in which mineralocorticoid secretion remains largely intact. That because this is predominantly stimulated by angiotensin II. वो हाइपोएड्रेनलिज्म जो कि बेसिकली प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होता है, पिट्यूटरी इंड्यूस्ड होता है, उसमें ग्लूकोकार्टिकाइड प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, लेकिन मिनरलोकार्टिकाइड प्रोडक्शन इतनी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 के थ्रू वो मिनरलोकार्टिकाइड प्रोडक्शन होती रहती है, और एड्रीनल सेक्स स्टीरॉयड प्रोडक्शन आल्सो लार्जरली इंडिपेंडेंट ऑफ पिट्यूटरी एक्शन होती है, सो वो भी प्रोड्यूस होता रहता है. सो पिट्यूटरी इंड्यूस्ड हाइपोएड्रेनलिज्म में मेनली सिर्फ ग्लूकोकार्टिकाइड प्रोडक्शन ही इफेक्ट होती है, वाइल जो प्राइमरी हाइपोएड्रेनलिज्म है जिसमें ग्लैंड इटसेल्फ इफेक्ट होता है, उसमें ऑल द थ्री हार्मोन्स आर अफेक्टेड. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी hypoadrenalism, the thing to be noted. Now in Addison's disease, Addison disease किसको बोलते हैं? Primary hypoadrenalism, that is the disease in which the gland is itself affected, जिसमें तीनों हार्मोन्स इफेक्ट होंगे. There is reduced cortisol level leads through feedback to increased ACTH production and CRH production, and due to increased ACTH production it is directly responsible for hyperpigmentation. और एक और हार्मोन है जिसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है. व्हाट्स दैट हार्मोन? इट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, which is responsible for hyperpigmentation. So this is the main mechanism कि hyperpigmentation होती है इन लोगों में जिनमें प्राइमरी हाइपोएड्रेनलिज्म होता है. Now, if we discuss the incidence, this is a rare disease. Incidence क्या है? 3 to 4 millions per year. और prevalence of disease क्या है? 40 to 60 million. 40 से 60 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक पर्सन को ये डिजीज होती है. प्राइमरी हाइपोएड्रेनलिज्म शोज अ मार्क्ड फीमेल प्रीपोनेरेंस because it's common in autoimmune in origin, and autoimmune diseases are more common in female. और यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके है, उसमें मोर देन 90% केसेस जो हैं इसके वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन है. ये यूके की स्टडीज़ हैं, बट द पिक्चर इज डिफरेंट इन आवर सिनारियो. और इसकी हाई प्रेवलेंस HIV और एड्स के पेशेंट्स में है. But in developing countries like ours, tuberculosis is an increasing cause. Autoimmune adrenalitis results from destruction of adrenal cortex by organ-specific autoantibodies. और वो autoantibodies किसके against हैं? There is a specific enzyme which is 21-hydroxylase. This is a common antigen. एड्रीनल का जो कॉमन एंजाइम है 21-हाइड्रोक्सीलेज, इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं. और
इन एंटीबॉडीज़ की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है ग्लैंड की, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस एंड एडिसन्स डिजीज़। ये जो ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस है, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे है। देन देयर इज एसोसिएशन, जैसे कि एक कॉमन फिनोमिना है ऑटोइम्यून डिजीज़ का कि देयर इज एसोसिएशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ विद अदर ऑटोइम्यून डिजीज़। तो इसकी भी एसोसिएशन है विद अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस लाइक, तो वो कुछ दो पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम्स हैं, पॉलीग्लैंडुलर ऑटोइम्यून सिंड्रोम्स टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 इंक्लूड्स टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, पर्नीशियस अनीमिया एंड थायरोइडाइटिस। एंड टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 इंक्लूड्स hypoparathyroidism and premature ovarian failure with this condition, that is Addison's disease. This is the autoimmune picture. And what are the clinical features? Clinical features will be discussed in the next slides. The symptomatology of the Addison disease is vague, depends upon clinical presentation. बहुत acute भी हो सकती है, पेशेंट emergency में लैंड कर सकता है। वेग और नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स के साथ ओपीडी में भी आ सकता है। These symptoms may be the prelude to Addisonian crisis. Addisonian crisis के साथ भी आ सकता है, with severe hypotension, dehydration, and there are some precipitating causes like intercurrent illness होगी, कोई सर्जिकल ऑपरेशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लाइक दीज आर ऑल मेटाबॉलिक बर्डन्स ओवर बॉडी, कि इनमें हार्मोन्स पहले नहीं होते, और जब मेटाबॉलिक बर्डन पड़ता है बॉडी पे तो बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर पाती, सो पेशेंट एडिसोनियन क्राइसिस में चला जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन हो सकती है। देन पिगमेंटेशन, डल पिगमेंटेशन, स्लेटी पिगमेंटेशन, ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन, ब्लैक पिगमेंटेशन, फुल ब्लैक नहीं होती, ग्रे ब्राउन सी, ब्लैक डल सी पिगमेंटेशन, स्लेटी सी पिगमेंटेशन प्रीडोमिनेंट फीचर है इसका, 90% केसेस में होता है। देन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, पोस्चरल सिस्टोलिक हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, सोडियम लॉस। ये क्यों होता है? ये होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी से, सोडियम डेफिशिएंसी से, वॉल्यूम डेफिशिएंसी से होता है, और ये भी 80 to 90% केसेस में होता है। इवन इफ सुपाइन ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, पेशेंट का सुपाइन ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपोटेंशन इसका फीचर है, इंपॉर्टेंट। ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। If we discuss the important causes of the primary hypoadrenalism, these include autoimmune disease, tuberculosis, very common our area, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में लेस कॉमन है। देन सर्जिकल रिमूवर, किडनी रिमूव किया है, साथ ये भी रिमूव हो गई है, सर्जिकल रिमूवल है। हेमरेज और इन्फॉक्शन ऑफ द ग्लैंड, शॉक हुआ पेशेंट को, इन्फॉक्शन हुई, हाइपोवोलीमिया हुआ, तो उसमें जो है एड्रिनल्स डैमेज हो गए। और मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया, ये एक कॉमन काज है, मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया। वीनोग्राफी है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ग्लैंड, इनफिल्ट्रेटिव लियंस ऑफ द ग्लैंड है, लाइक मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेशन है, उससे ग्लैंड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, एड्रिनल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और एमिलाइडोसिस है, एंड रेयरली शिल्डर्स डिजीज, एड्रिनल ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। Now, how will you investigate this condition? Once Addison's disease is suspected, investigation is urgent. If the patient is seriously ill or hypotensive, तो फिर आपने फौरी इन्वेस्टिगेशंस पे नहीं जाना। जस्ट टेक अ सैंपल फॉर लेवल ऑफ कार्टिसोल, एक
जो है रैंडम सैंपल कार्टिसोल का लेकर लैब में भिजवा दें उस वक्त, लेकिन इमीडिएटली ट्रीट द पेशेंट, सबसे पहले उसको ट्रीट करें, ट्राई टू सेव द पेशेंट। इन्वेस्टिगेशंस बाद में होती रहेंगी। हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 मिलीग्राम शुड बी गिवन इंट्रावीनसली और इंट्रामस्कुलरली टुगेदर विद IV 0.9% सेलाइन। ये दो चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने देनी है। एंड इमीडिएटली चेक द RBS, ब्लड ग्लूकोज ऑफ द पेशेंट। ये तीन चीजें हैं जो आपने करनी है। 100 मिलीग्राम सोलो कार्ट ऑफ देना है उसको, 0.9% सेलाइन देनी है, और उसका RBS उसकी इमीडिएटली चेक करनी है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया उसको मैनेज करना है, तीन चीजें करनी है। इससे पहले जस्ट एक कॉर्टिसोल का लेवल लेकर उसका लैब में भिजवा दें। आइडियली दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर ब्लड सैंपल, ये बात हो चुकी है। Alternatively, an ACTS stimulation test can be performed immediately, लेकिन ये बाद में होना चाहिए। Full investigations should be delayed until emergency treatment has improved patient's condition। बाकी इसके टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो हम डिस्कस करते हैं one by one। Now, single cortisol measurements, they are not of full value, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। और रैंडम कॉर्टिसोल बिलो 100, अगर उसका वैल्यू 100 से नीचे आ जाती है, 100 नैनोमोल पर लीटर से कम आ जाती है ड्यूरिंग द डे, इज हाईली सजेस्टिव कि एडिसन जो है एड्रिनल डेफिशिएंसी है। और अगर उसका लेवल मोर देन 550 आ जाता है देन डायग्नोसिस अनलाइकली। सो दो वैल्यूज हैं जो कि इसको या तो डायग्नोसिस को रिफ्यूट कर देती हैं या फिर उसको हाईली लाइकली कर देती हैं। सो इसकी इंपॉर्टेंस है। देन शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। नोट दैट एब्सेंट और इम्पेयर्ड कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स, अगर हम शॉर्ट ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं और इस कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स नहीं आता है, इट कंफर्म्स द हाइपोड्रेनलिज्म। तो हाइपोड्रेनलिज्म कंफर्म हो जाता है, ये इसकी वैल्यू है, बट इट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन एडिसन्स डिजीज फ्रॉम ACTH डेफिशिएंसी। प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट नहीं करता। और एट्रोजेनिक सप्रेशन बाय स्टीरॉयड मेडिकेशन, यहां हम आउटसाइड से वो पेशेंट कहीं से कोई स्टीरॉयड ले रहा है अदर कंडीशंस के लिए, कोई एट्रोजेनिक सप्रेशन है स्टीरॉयड्स की, उसको डिफरेंशिएट नहीं करता है। हाँ, हाइपोड्रेनलिज्म को कंफर्म कर देता है। द लॉन्ग ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट इज नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट ACTH assays। अदर टेस्ट क्या है? ACTH level at 9 AM, a plasma ACTH level. If you get a high level that is more than 80 nanogram per liter with low normal cortisol, अगर ACTH का लेवल सुबह 9 बजे करवाते हैं और वो 80 नैनोग्राम पर लीटर से ज्यादा आता है और उसके साथ कार्टिसोल का लेवल या लो आता है या लो नॉर्मल आता है, मतलब हाई नहीं आता, ACTH हाई है और कार्टिसोल हाई नहीं है, लो है या लो नॉर्मल है, दैट कंफर्म्स प्राइमरी हाइपोड्रेनलिज्म। इसका मतलब है कि एडिसन्स डिजीज है, प्राइमरी है, कि ACTH हाई है और कार्टिसोल लो है या लो नॉर्मल है, हाई नहीं है, तो ये प्राइमरी है, ग्लैंड का प्रॉब्लम है। देन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकलीमिया, हाई यूरिया, ब्लड ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया। देन एड्रिनल एंटीबॉडीज, ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस के मैनी केसेस में प्रेजेंट होंगी। चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे किस लिए करवाना है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए देखने के लिए, कैल्सिफिकेशन देखने के लिए, कैल्सिफाइड एड्रिनल्स देखने के लिए। प्लाज्मा रेनन एक्टिविटी, ये किस लिए करवानी है? अगर सीरम एल्डोस्टेरॉन कम होगा तो प्लाज्मा रेनन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। देन हाइपरकैल्सीमिया एंड अनीमिया आफ्टर रिहाइड्रेशन समटाइम्स सीन, हाइपरकैल्सीमिया एंड अनीमिया। सो ये सारे टेस्ट इसमें किए जा सकते हैं। एंड देन व्हाट्स ट्रीटमेंट?
acute hypoadrenalism needs urgent treatment. Long term treatment is with replacement glucocorticoids and mineralocorticoids. If the patient has tuberculosis, it must be treated. ATT से ट्रीट करना है tuberculosis को. रिप्लेसमेंट डोजेस भी हम डिस्कस करते हैं. एंड dehydroepiandrosterone replacement has been advocated, and some studies show it may cause symptomatic improvements, लेकिन कुछ स्टडीज में इसका कोई क्लियर बेनिफिट नहीं है. Now, this is a slide showing important signs and symptoms of the condition. Let's go through it. What are important symptoms? There is a variety of symptoms with which patient can present: weight loss, anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, constipation, malaise, weakness, fever, depression, and then you can see impotency and amenorrhea. Confusion, very important. Syncope from postural hypertension. Syncope from postural hypertension, this is important. वॉल्यूम लॉस की वजह से पोस्चुरल हाइपरटेंशन होगी. सिस्टोलिक, पोस्चुरल हाइपरटेंशन और सिनकपी हो सकती है. एब्डोमिनल पेन, मायल्जियास, जॉइंट, बैक पेन. सो यू कैन सी वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं, बॉडीली सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है. साइंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पिगमेंटेशन, स्पेशली ऑफ न्यू स्कार्स, पामर क्रिएजिस. पिगमेंटेशन होगी पामर क्रिएजिस की, न्यू स्कार्स की, बकल पिगमेंटेशन एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन. देन अगेन पोस्चुरल हाइपोटेंशन, बोल्ड में देखें, पोस्चुरल हाइपोटेंशन. लॉस ऑफ वेट, जनरल वेस्टिंग, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ हेयर, विटलाइगो. मैनेजमेंट, देन अगेन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया. एक पेशेंट इमरजेंसी में आता है, ही और शी इज इन हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर उसका कम है, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरकलीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है. व्हाट यू विल सस्पेक्ट? एडिसन के फीचर हैं सारे. डिहाइड्रेटेड है, पिगमेंटेड है, ऑफन विद कोई प्रेसिपिटेटिंग इवेंट है, लाइक इन्फेक्शन के साथ प्रेसिपिटेंट हुआ है, कोई इसकी रिसेंट सर्जरी हुई थी 2 दिन पहले और उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके बाद इन चीज़ों के साथ प्रेजेंट किया है. यू आर गोइंग टू सस्पेक्ट हाइपो एड्रीनलिज्म. या पुरानी हिस्ट्री को ट्यूबरक्लोसिस की थी, you are going to suspect it now as a case of hypoadrenalism. The major deficiencies are salt, steroid and glucose. Assuming normal cardiovascular function, this is very important. आपने उसका cardiovascular status भी देखना है, because you are going to infuse him or her with fluid. The following are required. 1 liter of saline, 0.9% saline should be given over 30 to 60 minutes. And 100 milligram of intravenous bolus of hydrocortisone. ये तो आपने उसको दे देना है फौरन. जो फ्लूइड है 30 से 60 मिनट में, और 100 मिलीग्राम जो है उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देना है. सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट, साथ उसकी ECG करवा लेनी है, उसका कार्डियोवास्कुलर स्टेटस देख लेना है कि कोई MI तो नहीं है, या CVP लाइन की ज़रूरत है तो वो डाल लेनी है देखने के लिए कि उसका CVP प्रेशर कैसा है, या प्रीवियस उसकी हिस्ट्री एवेलुएट कर लेनी है कि पहले कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट तो नहीं है. Subsequent requirements are several liters of saline within next 24 hours. और हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 मिलीग्राम 6 hourly. ग्लूकोज उसका RBS चेक करनी है. ग्लूकोज शुड बी इन्फ्यूज इफ देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया. Oral replacement should be started as soon as possible, जैसे कि वो कॉन्शियस हो. Oral medications उसकी देनी है. Initially hydrocortisone 20 milligram 8 hourly,
and then reducing to 20 to 30 milligram in divided doses per day. Fludrocortisone is unnecessary initially, as high dose cortisol provides sufficient mineralocorticoid activity. It should be introduced later. और इसकी एवरेज रिप्लेसमेंट डोजेज जो स्टीरॉयड की हैं, ये तो एमरजेंसी डिस्कस हम कर चुके हैं. बाद में क्या है डोजेज हैं जो कि रेगुलर रिप्लेसमेंट में हमने हाइपोएड्रेनलिज्म के पेशेंट को देनी है. व्हाट अबाउट हाइड्रोकॉर्टिसोन? 20 to 30 मिलीग्राम पर डे, जो अभी बताया है 20 to 30 मिलीग्राम पर डे डिवाइडेड डोजेज. डिवीजन कैसे है? 10 मिलीग्राम ऑन वेकिंग, 5 मिलीग्राम एट 12 बजे देनी है, 5 मिलीग्राम एट 18 आवर्स 6 बजे. अगर प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं 7.5 मिलीग्राम पर डे, 5 मिलीग्राम ऑन वेकिंग और 2.5 मिलीग्राम देनी है 6 बजे. और रेयरली डेक्स्ट्रामेथासोन इफ यू आर यूजिंग इट 0.75 मिलीग्राम पर डे, और इसमें से 0.5 मिलीग्राम जो है वेकिंग पे देनी है और 0.25 मिलीग्राम 6 बजे देनी है. और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है जी, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, इफ यू आर रिप्लेसिंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो लेटर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी डोज है 50 से 300 माइक्रोग्राम पर डे. अब एडिक्वेसी कैसे असेस करनी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो आप दे रहे हैं कि इसकी डोज सफिशिएंट है पेशेंट के लिए? क्लिनिकल असेसमेंट ये है कि पेशेंट अपने आप को ठीक महसूस करेगा, उसका वेट बेहतर हो जाएगा, पहले जो वेट लॉस था वो ठीक हो जाएगा. अगर आप उसकी रिप्लेसमेंट हाइड्रोकॉर्टिसोन से कर रहे हैं तो आप उसको कार्टिसोल लेवल से असेस कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उसको सिंथेटिक स्टीरॉयड दे रहे हैं, कार्टिसोल नहीं दे रहे, फिर आप उसका कार्टिसोल लेवल नहीं करवा सकते. कार्टिसोल लेवल से आप तब असेस कर सकते हैं जब आप उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन दे रहे हैं. अगर कोई और स्टीरॉयड सिंथेटिक स्टीरॉयड दे रहे हैं फिर कार्टिसोल लेवल से नहीं कर सकते. और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन को कैसे असेस कर सकते हैं? एक तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट से कर रहे हैं, उसका सीरम जो है सोडियम और पोटाशियम जो है उसका नॉर्मल हो जाएगा. ब्लड प्रेशर से असेस कर सकते हैं, जो उसको आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपोटेंशन थी वो उसकी ठीक हो जाएगी. उसका ब्लड प्रेशर चेक करें, स्पाइन पोजीशन में खड़ा करें उसको, 2 मिनट के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें, जो फॉल इन ब्लड प्रेशर था मोर देन 10 वो ख़त्म हो जाएगा. और प्लाज्मा रेनन एक्टिविटी चेक करें, तो वो जो उसका रेनन लेवल बढ़ा हुआ था वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा. और एडवाइस क्या करनी है पेशेंट को? लास्ट स्लाइड टू बी डिस्कस्ड. एक तो पेशेंट को एडवाइस करनी है ये कि जब भी उसको इंटरकरेंट इलनेस है तो उसने अपनी स्टीरॉयड की डोज बढ़ा देनी है. जब भी उसको बुखार चढ़ा है, उसकी इन्फेक्शन हुई है, कोई सर्जरी है, सर्जरी का तो खैर डॉक्टर डिसाइड कर लेगा, लेकिन कोई भी उसको इंटरकरेंट इलनेस है, स्ट्रेस है, तो उसने अपनी स्टीरॉयड की डोज बढ़ानी है, रिप्लेसमेंट डोज लेनी है. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीरॉयड कार्ड. पेशेंट के पास एक स्टीरॉयड कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डिजीज़ की, ताकि अगर कहीं भी वो अनकॉन्शियस मिले तो जिसको मिले वो किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाए तो डॉक्टर उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर ले कि ये एडिसन डिजीज़ का पेशेंट है, तो इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी जो है इसको स्टीरॉयड रिप्लेस करना है, इसका आरबीएस चेक करनी है, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं, इसको ऐसे मैनेज करना है. स्टीरॉयड कार्ड होना बहुत ज़रूरी है जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट वो वही चीज़ है, स्टीरॉयड कार्ड और मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन हो. देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अप टू डेट एम्प्यूल ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन. उसके घर में एक हाइड्रोकॉर्टिसोन का एक इंजेक्शन होना चाहिए जो पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को लाजमी लगाना आता हो, कि कभी उसको कोई ऐसी इमरजेंसी हो या एकदम से पेशेंट सीरियस हो, उसको पता हो कि इसको कैसे इन्फ्यूज़ करना है, और यही उसकी लाइफ सेविंग ड्रग है जो कि उसको किसी इमरजेंसी में सेव कर सकती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट नीड. थैंक यू वेरी मच. One more slide, sorry. This is about secondary hypoadrenalism. Secondary hypoadrenalism. Secondary, as the name indicates, this is from the hypothalamic or pituitary origin. अब पिट्यूटरी के क्या काजेज हैं वो तो आपको पता है कि कोई भी डिजीज़ और कंडीशन जो पिट्यूटरी को या हाइपोथैलेमस को डैमेज कर सकती है, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब करेगी, ACTH की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो उससे भी हाइपोएड्रेनलिज्म तो हो जाएगा.
दिस इज सेकेंडरी हाइपोएड्रेनलिज्म, और पूरा एक्सिस डिस्टर्ब हो जाएगा। या अगर कोई हार्मोन्स आउटसाइड से पेशेंट एट्रोजेनिक ले रहा है और पूरा एक्सिस ही बैठ जाता है, तो इससे भी हाइपोएड्रेनलिज्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ये भी, इससे भी हाइपोएड्रेनलिज्म हो जाएगा। और जैसे लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी है, इससे भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि इसमें आपको जो थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है। द कैच पॉइंट इज इन दिस, अलॉन्ग विद दीज हार्मोन्स, कार्टिसोल रिप्लेसमेंट के साथ और बाकी जो हार्मोन हैं इसकी रिप्लेसमेंट के साथ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। और जब आपने थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करनी है, उनको करने से पहले स्टीरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट जो है वो भी देनी है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें।